ഒരു സംസ്ഥാനം കത്തിയെരിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി നോക്കാതെ 3 മാസമായി മാറി നടക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, അവിടേക്കൊന്ന് പോകാനോ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി, ആ വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് സഭയിലേക്ക് വരാതെ വേറെ എതിലെയോ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി, 56 ഇഞ്ച് നെഞ്ചിന്റെ വീര്യം പറഞ്ഞ് ഒപ്പമുള്ളവർ സ്തുതി പാടുമ്പോൾ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി, മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് പാർലമെന്റിൽ ഒന്ന് വാ തുറക്കാൻ പോലും മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടോ എന്ന് മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ പോലും കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ. ഇത് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു. കലാപ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുപോലെ തുടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആ ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷം അതിശക്തമായി, ഒരുപക്ഷെ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല, ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആസാമിൽ നിന്നുള്ള MP ആയിട്ടുള്ള ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കുടയുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ. അത് കേട്ട് അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു, പാർലമെന്റിൽ ക്ഷുഭിതരാവുകയായിരുന്നു, ഒച്ചയും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു, കൊള്ളേന്റെ അടുത്ത് കൃത്യമായി കൊണ്ടു. ഗൗരവ് ഗൊഗോയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗം, നിങ്ങൾ അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു പ്രസംഗം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മൻമോഹൻ സിംഗും രാജീവ് ഗാന്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ കലാപസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു. 1986 മിസോറാമിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇടപെട്ടത്, അതുപോലെ ആസാമിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇടപെട്ടത്. അന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗിന് സ്വാഗതമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആസാമിലെ ജനങ്ങൾ ബോർഡും വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോയത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്ത് ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് പോയ പ്രധാനമന്ത്രി, മണിപ്പൂരിൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ കർണാടകയിൽ പ്രചാരണത്തിന് പോയ പ്രധാനമന്ത്രി, അങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവം, അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയുന്ന പരിപാടി, അതൊക്കെ ഇന്ന് തേച്ചൊട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്. ആ പ്രസംഗം കേൾക്കുക. രാജീവ് ഗാന്ധിയും മൻമോഹൻ സിംഗും ഒക്കെ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവരൊക്കെ മഹാരഥന്മാരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളോട് സമീപനം നടത്തിയത്, വാജ്പേയി പോലും എങ്ങനെയാണ് വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടത് എന്ന് ഉദാഹരിക്കുന്ന ആ പ്രസംഗം പ്രേക്ഷകരൊന്ന് കാണുക, വിലയിരുത്തുക. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ നടന്ന പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് കാണുക. प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो पूर्व ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली। जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी ही चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब कोविड में सेकेंड वेव में लोग के सांसों में, फाफड़ों में ऑक्सीजन नहीं था, तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? इस देश के इतिहास में हमने दूसरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं। हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल और भारत की संवेदना को समझा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो असम में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शांति के पहल के लिए उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं ताकि शांति आगे बढ़े। ये हमारा राष्ट्रवाद है कि दल से ऊपर हमारा देश, ये हमारा राष्ट्रवाद। जब मीजो अकॉर्ड हुआ, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। जब मीजो अकॉर्ड हुआ 1986 में, तब मिजोरम में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने लालडेंगा जी के साथ समझौता करके मीजो अकॉर्ड उन्होंने स्थापना किया 1986 में, और वहां के पूर्व लालडेंगा जी मिजोरम के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने और निर्वाचन
ये है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांति चाहिए उत्तर पूर्वांचल में। अगर सत्ता खोनी पड़ी, दल का बलिदान देना पड़ा, तो उत्तर पूर्वांचल और देश की अखंडता के लिए हम वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी को याद होगा, जब मिजो अकॉर्ड हुआ उसके अगले ही दिन राजीव गांधी जी और सोनिया जी मिजोरम गए थे, आइजवाल गए थे, और जगह जगह पर लोगों ने इन दोनों का स्वागत किया और उन्होंने कहा, स्वागत राजीव गांधी जी, वेलकम राजीव गांधी जी, आप शांति के प्रतीक हो। ऐसा पहल प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं करते? हम उनका समर्थन करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। इस सदन में जब 2012 में असम में कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, असम में जाकर, वी आर वन पीपल, वी आर वन नेशन, वी मस्ट लिव टुगेदर एज सच, वी मस्ट रिस्टोर पीस एंड काम थ्रू आउट द एरिया। ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं करते? चलिए मेरे दल का नहीं, चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए, तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। तो सीधा सीधा सर, मैं प्रधानमंत्री जी से 3 में हमारी याचना है, 3 हमारे याचना है। याचना 1 कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए। हमारी याचना 2 कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा 3 ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोका चक्र है। आज नफरत एक हथियार बन चुका है, नफरत एक हथियार बन चुका है वोट जीतने के लिए। वो चाहे मणिपुर में हो, वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे कर्नाटक में हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो। आप जितना भी नफरत फैलाएं, आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है। आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे, हम संविधान की सुरक्षा करेंगे। Our constitution that talks about equality, liberty, justice, fraternity, हम इस संविधान के आदर्शों की हम सुरक्षा करेंगे। आप पूंजीपतियों का विकास चाहते हैं, सबका विकास कहते हैं, लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। ये है आपका विकास का मॉडल, ये है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कंपनी को तो नाम ले सकता हूं। ये कैसा प्रक्रिया है सर? ये कैसा कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी बना रहे हैं? जब अप्रैल 2030 में श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है, तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री को खरीदता है। ये इकोनॉमी बना रहे हैं, ऐसा इकोनॉमी आप बनाएंगे? हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है।
आज टमाटर 2050 केजी में, पेट्रोल 102 लीटर का, एलपीजी 1200 रुपए सिलेंडर का, मिल्क आज दूध के दाम पे। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखिए जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जीडीपी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बातें उनको समझाइएगा। आजादपुर मंडी में राहुल जी गए, आप किसान की बात करते हैं, आपके यह डेटा में आज हमको मिला है कि लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, जिसमें से किसान है, श्रमिक है, कल्टीवेटर्स है। ये है पार्लियामेंट में आज उत्तर आता है कि एमजीएनरेगा में 5 करोड़ लोगों को आज एमजीएनरेगा से बाहर कर दिया है। ये आपका विकास है। तो सर ये आप गरीबों पे विश्वासघात करिए, हम राजस्थान की तरह देश में महंगाई में हम राहत लाएंगे। आप आदिवासियों में अत्याचार करें, हम आदिवासी छात्र, महिलाओं और एनजीओ के साथ हम भारत को हम जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी विल प्रोटेक्ट एंड वी विल विन। जो 2024 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इतना अहंकार मत करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना प्रस्ताव यहीं पे रखता हूं। धन्यवाद।